यहां पे Maduro's VP Delcy Rodriguez sworn in as interim president of Venezuela. Venezuela's parliament swore in Delcy Rodriguez as interim president on Monday, January 5, 2026, 2 days after US forces seized her predecessor, Nicolas Maduro. To face trial in New York, Ms. Rodriguez, who has indicated she will cooperate with Washington, took the oath during a ceremony in the National Assembly, telling lawmakers she did so in the name of all Venezuelans. She said she was in pain over the kidnapping of our heroes, the hostages in the United States, referring to Mr. Maduro and his wife, Celia Flores, who faced drug charges along with other Venezuelan officials. Member of the National Assembly offered their full backing to Ms. Rodriguez, who had been Ms. Maduro's vice president, and re-elected her brother, George Rodriguez, as Parliament Speaker. The President of the United States, Mr. Trump, claims to be the prosecutor, the judge, and the policeman of the world. Senior lawmaker Fernando Soto Rojas said in an address to his colleagues. अच्छा, ये सब बातें चल रही हैं यहाँ पे, और जो वाइस प्रेसिडेंट थी मडूरो की, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है फिलहाल, कि आप जाके देखिए। ठीक है, ये एक काम हो गया है, यानी कि मडूरो गया जेल में या फिर कोर्ट में गया अपनी वाइफ के साथ, और उसकी जगह जो उसकी वाइस प्रेसिडेंट था मडूरो का, मैडम को बना दिया उन्होंने राष्ट्रपति। इन गुड हैंड्स, ये कहते हैं वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट ऑन सैटरडे ordered Delcy Rodriguez to assume the presidency in an acting capacity, and on Sunday the military also threw its support behind her. Ms. Maduro's lawmaker son Nicolas Maduro Guerra also offered his support for the acting president. Count on me, count on my family, Maduro Guerra, known as Nicolesito, told Ms. Rodriguez during an address to parliament, adding the country was in good hands until his parents return. अच्छा, ये स्टोरी यहां पे खत्म होती है कि मडूरो और उसकी बीवी अमेरिका में कैदी, इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिगस, वो बन गई राष्ट्रपति वेनेजुएला की। कोर्ट ने बोला हम आपके साथ हैं, मडूरो के बेटे ने बोला हम आपके साथ हैं, सारे लॉ मेकर जो उनकी पार्लियामेंट के हैं वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को यहां पे दोस्तों बंद करते हैं और चलते हैं एक और बड़ी खबर पे। अब दोस्तों ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज के पूरे प्रेजेंटेशन की, मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे। ये देखिए, इंडिया टुडे से हमने लिया है, ट्रंप टोल्ड ऑल जायंट्स नॉट यूएस कांग्रेस अबाउट द वेनेजुएला स्ट्राइक। डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्शन लेता है इतना बड़ा, उसको कांग्रेस से बात करनी पड़ती है, यह अमेरिका का कानून है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से बात करी नहीं, उसने बताया नहीं। ये देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप स्पोक टू मेजर US oil companies before and after the military operation in Venezuela, while Congress remained in the dark until the news broke. It was only after the operation, which led to Maduro's arrest, that the Trump administration began to inform members of the Congressional Gang of Eight and the chiefs and senior members of the Intelligence Committee of the two houses. The Gang of Eight is a grouping of top Republican and Democrat lawmakers of the Senate and House of Representatives. US Congress Armed Forces Panel kept in dark. Just imagine, US Congress और जो इनका Armed Forces Panel है, उसको पता ही नहीं कि वेनेजुएला पे स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक हो गई, मडूरो को पकड़ के वापस ले आए, तब जाके फोन करना, भाई ये कर दिया हमने। ये देखिए साहब, lawmakers from both parties have flagged the lack of advance notice on the military operation in Caracas. Some of the lawmakers from the Democratic Party have cited the War Powers Resolution, under which presidents must inform Congress within 48 hours of hostilities, and major operations typically involve pre-briefing. Trump, however, has defended the secrecy, calling it a trigger-based mission and accusing Congress of having a tendency to leak. मैंने बोला था ना, ये कह रहा है कि अमेरिका के सिस्टम पे मुझे भरोसा नहीं है। बिलांद भर का वेनेजुएला, बिलांद भर का, उस ऑपरेशन पे इसको कांग्रेस का भरोसा नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले, जब वो इराक गए, अफगानिस्तान गए, लीबिया गए, सीरिया गए, जहां मर्जी, कोरिया गए, वियतनाम गए, उन्होंने सबने बताया था। जो दशकों तक लड़ाई चली थी, भाई ने नहीं बताया, कहता है कांग्रेस में गद्दार हैं। ये देखिए, टेंडेंसी टू लीक, कह रहा मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम आगे मेरी सीक्रेट आउट कर दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन जो अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोस्तों सुनिए ध्यान से, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहां होते हैं, जो माननीय सांसद होते हैं, जो कि देश को चलाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, उन लेवल के लोगों को अमेरिका के अंदर भाई ने बताया नहीं। भाई ने किसको बताया? ऑयल कंपनीज को। यानी कि ऑयल कंपनीज के ऊपर ट्रंप भरोसा करता है, लेकिन खुद की कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं करता।
Oil giants were aware. On being asked if he spoke to oil companies before the operation and tipped them off, Trump revealed he had consulted major US oil companies before and after the strike. यानी कि जब वो वेनेजुएला के ऊपर हमला कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, उसके पहले ये ऑयल कंपनीज की एक मीटिंग इसने कराई, जो बड़ी बड़ी एक्सॉन है और इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शेवरॉन है और भी कई कंपनीज हैं अमेरिका में, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं अमेरिका में, उन सबको बुलाया। यार देखो सुनो, मैं वेनेजुएला के अंदर घुस रहा हूं, वहां के प्रेसिडेंट को हम लोग उठा के ले आएंगे, उसकी बीवी को उठा के ले आएंगे, ये सब हम लोग काम करेंगे, तख्ता पलट करने वाले हैं। इससे तुम्हें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर, हमें फायदा हो रहा है, निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इमेजिन, प्राइवेट सिटीजन्स को, जो कंपनी के सीईओज हैं, उनको पता है लड़ाई होने वाली है। कांग्रेस को बोला है कि टेंडेंसी टू लीक। यहां पे experts indicate these discussions with oil companies occurred amid prior blockades and sanctions on Venezuelan oil. United States Secretary of State Marco Rubio, after the strike, said the companies were eager to invest in Venezuela. News agency Reuters reported. आप ये देख लीजिए कितनी अंधी मचा रखी है ट्रंप ने, कितनी अंधी मचा रखी है इसने। खुद की पार्लियामेंट को नहीं बता रहा, खुद की कांग्रेस को कह रहा है गेट आउट, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, टेंडेंसी टू लीक, यानी कि मैं तुम्हें कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूंगा, तुम चार लोगों के बीच में बकवास करोगे, तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। लेकिन ऑयल जायंट्स, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो जमीन से तेल निकालती हैं, वो भरोसे के काबिल हैं। यूएस कांग्रेस भरोसे के काबिल नहीं है। क्यूबा says 32 Cuban officers were killed in US operations in Venezuela. अब दोस्तों ये है कि यहां पे 32 क्यूबन्स भी हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि 32 क्यूबन मारे गए हैं। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उसके भी माँ बाप जो थे वो क्यूबा से आए थे, उसके दादा दादी माँ बाप क्यूबा के हैं। ऑल्सो पॉइंटेड टू क्यूबन इन्वॉल्वमेंट इन वेनेजुएला ओवर द वीकेंड। अब ये देखिए ना, ये बहाना बन रहा है, 32 क्यूबन मारे गए, ये हो गया। ऑल द गार्ड्स दैट हेल्प प्रोटेक्ट मडूरो, दैट इज व्हाट वेल नोन इज द होल स्पाई एजेंसी, ऑल दैट वर फुल ऑफ क्यूबन्स। ठीक है। An American military operation in Venezuela killed 32 Cuban officers over the weekend, the Cuban government said on Sunday. In the first official death count provided of the American strikes in South American nation, the Cuban military and police officers were on a mission the Caribbean country's military was carrying out at the request of Venezuela's government, according to statement read on Cuban state TV. You know, a lot of Cubans were killed yesterday, US President Donald Trump told reporters on board Air Force One. अब ये सारी की सारी चीजें हैं, इसका मतलब आप ये मान सकते हैं। देखिए, all the guards that help protect Maduro, this is well known, their whole spy agency, all that were full of Cubans. यानी कि ये अब क्यूबा पे इसकी नजरें हैं, इसकी नजरें डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा पे हैं। अब ये क्यूबा को क्या बोलेगा कि तुमने मडूरो की हेल्प करी, तुम भी ड्रग्स स्मगलर हो, चलो तुम्हें भी ठोकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ये होगा। और मैंने ट्वीट भी करा था, माइट इज राइट। मैंने कल ही ट्वीट करा था, माइट इज राइट। यही सच है यार, ये माइट इज राइट। जिसके पास ताकत होती है ना, वो कर देता है उसको जो करना होता है। आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए साहब, अब ये देखिए साहब, क्यूबा को डायरेक्टली ब्लेम कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ है कि कैलकुलेशन गड़बड़ा गए थोड़े से। ये खमेनेई है, आप जानते हैं, ईरान का सुप्रीम लीडर खमेनेई। नो लॉन्गर एन एम्प्टी थ्रेट, व्हाई ईरान नाउ बिलीव्स ट्रम्प्स थ्रेट्स आर रियल। अभी तक सब ये बोलते थे ये आदमी यार बड़बोला है, ये बड़बोला है। डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, करेगा कुछ नहीं। ईरान भी यही समझता था। आज की तारीख में ईरानियों का गला सूख गया दोस्तों, जो ईरान की लीडरशिप है उनका गला सूख गया। US President Donald Trump's threats against Iran is looking more real than ever following the forced regime change in faraway Venezuela. The US operation against President Nicolas Maduro, a close ally of Iran, is widely seen by Iranian leaders as proof that Trump is willing to use force to remove or pressure hostile governments. For years, Iranian officials viewed Trump as loud and unpredictable, but ultimately cautious. They believed that he preferred pressure and threats over real military action and forced regime change. The events in Venezuela have shaken that belief. In Tehran's eyes, the message is simple. Trump is prepared to act directly if he thinks it serves US interests. As a result, his warnings about Iran now feel more real. When Trump says the United States is locked and loaded and ready to respond if Iran kills protesters, Iranian leaders believe this is no longer empty talk. The idea of US strikes, whether through air attacks or targeting senior leaders, now feels closer and more possible. पहले भी कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कर चुका है दोस्तों। अचानक एक दिन, ये हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है
तो मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि आप लोग आइए और कतर में बातचीत हो रही है, आप लोग कतर में आप लोग बात करिए, यहां पे इजरायली बैठेंगे, यहां पे मेरा भाई स्टीव विटकॉफ बैठेगा, यहां पे कतरी बैठेंगे, ठीक है, यहां पे ईरानी बैठेंगे, सब लोग हम साथ साथ हैं, सब लोग बैठ के एक सोल्यूशन निकालते हैं यार। संडे को मीटिंग होनी थी, राइट? 24 घंटे पहले रात को गेम कर दिया एक्चुअली। एंड इजरायलीज ने बोला है कि जो उन्होंने राइजिंग लायन का ऑपरेशन लॉन्च करा था ईरान के ऊपर, बमबारी करी थी, दैट वाज सैंक्शन्ड बाय ट्रंप। और सैंक्शन क्यों नहीं करता ट्रंप यार? उसने तो फिर मिडनाइट हैमर लॉन्च करा, उसने भी ठोका ईरानियों को। तो आज की तारीख में ईरानियन ये सोच रहे हैं कि ये भाई अगर वेनेजुएला में कर सकता है तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? यानी कि ट्रंप, जिसको पहले ये लोग सोचते थे कि बड़बोला है लेकिन ये करेगा नहीं, ट्रंप ने दिखा दिया वो करने को तैयार है। और ट्रंप के मुंह में खून लग गया दोस्तों, ध्यान रखना, ट्रंप के मुंह में लग गया खून। अब ट्रंप क्या करेगा कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, क्यूबा, क्या है, व्हाट इज क्यूबा? फाड़ एक थप्पड़ मारा, क्यूबा को निकालो। क्यूबा कुछ भी नहीं है यूएस के सामने, वेनेजुएला कुछ भी नहीं है, तो ये करेगा। अब ये डराएगा किसको? मैक्सिको को, खौफजदा कर देगा मैक्सिको को ये। और पूरी दुनिया में अब इसकी तूती बोलेगी यार डोनाल्ड ट्रंप है ये आदमी। एग्जाम्पल मैं देता हूं ना अक्सर, एक आदमी है सड़क पे चल रहा है, फटे कपड़े हैं, लंबे बाल हैं, मुंह से थूक निकल रहा है, हाथ में उसका ईंट है, सब डरते हैं उससे, वो किसी को भी ईंट मार देगा, वो पागल है, वो किसी को भी ईंट। यही रेपुटेशन अपनी डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाह रहा है कि देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मेरे ऊपर ये डिपेंड नहीं कर सकते कि मैंने आपसे अभी हेलो बोला, आपके गले मिला, फिर मैं आपके सर पे ईंट नहीं मारूंगा। हेलो और आप कैसे हैं और सर पे ईंट मारना, इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है आज की तारीख में। दिस इज व्हाट ईरान इज थिंकिंग। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से हमने खबर ली है और यह है टाइम्स ऑफ इंडिया से। ईरान इन सर्वाइवल मोड, ट्रम्प्स थ्रेट लूम्स एज प्रोटेस्ट स्प्रेड, ऑफिशियल्स फियर यूएस अटैक। Iran's attempts to suppress a fresh wave of anti-government protests have been complicated by Donald Trump's threat to side with demonstrators, a warning underscored by the US capture of Venezuela's Nicolas Maduro. Officials and insiders said on Monday, a day after US President Trump threatened military action. Iran's Supreme National Security Council held a late-night emergency meeting on Friday to discuss ways to contain nationwide protests with less violence and to prepare for potential strikes. 3 Iranian officials familiar with the government deliberations told the New York Times on Friday Trump threatened to intervene if protesters face violence, declaring we are locked and loaded and ready to go, though he offered no details of what actions he might take. जब ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड वाली बात करी थी तब ईरानी जो हाई कमांड था इनका, सुप्रीम लीडर वगैरह, ये सब हंसे थे। क्या हुआ कि वेनेजुएला के अटैक के पहले की धमकी है ये। उसने बोला वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, तो उन्होंने बोला ये बकवास करता है, फालतू का आदमी है, इसकी आदत है, बड़ बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे हम, हमें पता है कहां पे अटैक करना है, हमें पता है कि तुम्हारे बेसिस कहां पे हैं, तुम बच नहीं पाओगे ईरान से। अब उसने ठोक दिया वेनेजुएला को। जैसे ही वेनेजुएला को ठोका, ये भाई लोग, इनका गला सूख गया, ये कह रहे हैं यार ये तो पागल आदमी है, इसने वेनेजुएला को मार दिया तो हम कौन सी खेत की मूली है, हमारे पीछे भी आ जाएगा ये, और पहले भी मार चुका है मिडनाइट हैमर में। अब वहां पे इमरजेंसी मीटिंग हो रही है ईरान के अंदर इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। और Khamenei's plan B, Iran's supreme leader may seek refuge in Russia if regime falls. An assessment per the report by the Times stated that 86-year-old leader would depart Tehran with around 20 people, including family and close aides, if military or security services refuses orders, defect, or lose control of the situation. Among those included in the plan, his son Mojtaba, his preferred successor. The alleged escape strategy appears to be influenced by the example of former senior leader Bashar al-Assad, a close ally of Tehran, who fled Damascus for Moscow with his family before opposition forces captured the Syrian capital in December 2024. Khamenei's team has already mapped our exit routes and prepared logistical support, including overseas assets and cash reserves for his departure if things go south, the Times reported, citing a source. दोस्तों, साफ सीधी बात है, अगर यूएस जाता है और खमेनेई को पकड़ लेता है तो ये घसीट के ले जाएंगे, बोलेंगे इसको जज के सामने खड़ा करो, सीधी बात है, राइट? या तो इसको निपटा देंगे, अगर नहीं निपटाएंगे तो फिर ये इसके पीछे पड़ जाएंगे। तो अब जितने भी ईरानियन ऑफिशियल्स हैं, सिर्फ खमेनेई नहीं, जितने भी ईरानियन ऑफिशियल्स हैं, अब सबके दिमाग में एक ही पिक्चर चल रही है कि यार अगर अमेरिकन आते हैं तो इस बार अमेरिकन आएंगे फुल एंड फाइनल करने, इजरायली पीछे नहीं छूटेंगे। और पूरी अरब दुनिया, दोस्तों, मार्क माय वर्ड्स, द एंटायर अरब वर्ल्ड विल कीप क्वाइट। वो चाहते हैं कि निपट जाए खमेनेई, वो चाहते हैं ये चीज, वो बीच में नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट दे विल गिव देयर एयर स्पेस फॉर रिफ्यूलिंग, दे विल गिव देयर एयर बेसिस कि यहां से हमला करो इसके ऊपर, क्योंकि इस आदमी ने, खमेनेई ने, और इसकी जो इस्लामिस्ट रजीम है ईरान, इसने पूरे मिडिल ईस्ट को परेशान कर रखा है, हमास, हिजबुल्लाह, पता नहीं क्या क्या, राइट?
हूथी, सबको परेशान कर रखा है इसने। तो लोग चाहते हैं कि निपटारा हो जाए इसका। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये भागने की कोशिश यहां पे बता रहा है कि बशार अल असद वो भी तो भाग गया था। हां, अगर ये रशिया भाग जाता है, अगर खामेनेई रशिया भाग जाता है तो वहां पे सेफ है। ये चाइना भाग जाता है तो वहां पे सेफ है। चाइना वैसे इसको लेगा नहीं, रशिया ले लेगा। रशिया भाग जाता है तो सेफ है वहां पे। लेकिन अगर ये ईरान के अंदर रह गया, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट्स फैल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि 100 शहरों से ज्यादा प्रोटेस्ट फैल चुके हैं ईरान के अंदर। स्मॉल एंड बिग सिटीज एंड टाउन्स उसके अंदर फैल चुके हैं। लोग सड़क पे आ रहे हैं, चक्का जाम चल रहा है वहां पे, और पीपल हैव जस्ट सेड कि हेल विथ यू यार, अब नहीं हो सकता कुछ। और इतना ज्यादा, और हर समय लोग सिर्फ एक ही नारा, 24/7 एक नारा है कि शाह को वापस लाओ, शाह को वापस लाओ। यानी कि जो राजा था, राजा को वापस लेकर आओ, उसको गद्दी पे बैठाओ। तो ये बातें चल रही हैं दोस्तों यहां पे। आखिरी बात बता दूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। चाइना कमजोर होता है इससे। वेनेजुएला का मैक्सिमम ऑयल कौन खरीदता था? चाइना। ईरान का मैक्सिमम ऑयल कौन खरीदता है आज की तारीख में? चाइना। यानी कि चाइना को अश्योर्ड ऑयल सप्लाई थी। फिर से सुनिएगा, चाइना को अश्योर्ड ऑयल सप्लाई थी वेनेजुएला से। अश्योर्ड ऑयल सप्लाई आज की तारीख में है ईरान से। अगर आप ये चीज काट देते हैं, बिल्कुल काट देते हैं कि भाई वेनेजुएला से भी नहीं देंगे तेल और तुम्हें ईरान से भी नहीं देंगे, चाइना को बहुत बड़ा धचका लग जाएगा। हां, चाइना 10 और जगह से ले सकता है, लेकिन महंगा तेल यानी कि प्रॉफिट मार्जिन में कटौती।